انہوں نے آج وضاحت جاری کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف دونوں کی جو درخواستیں ہیں وہ دائر کی گئی تھیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ الیکشن کمیشن میں ترمیم عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کر سکتی اور الیکشن کمیشن میں ترمیم کا ماضی سے اطلاق سپریم کورٹ پر نہیں ہو سکتا. مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کی دوسری وضاحت جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ٹھیک ہے، دوسری وضاحت کے متعلق آپ سے مزید جانیں گے. میاں شاہد ساتھ ہی موجود رہیے گا. ماہر قانون جہانگیر جدون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ایک اور وضاحت آئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اور 8 ججز کی جانب سے. یہ وضاحت میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور ماضی سے اطلاع کر کے سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا. کیا آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ 12 جولائی کا فیصلہ تھا. اس کے اندر آئین کی بھی انٹرپریٹیشن کی کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 17(2) ہے اس کی بھی. تو اس طرح یہ پارلیمنٹ کے ایکٹ سے اس کو آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے جس کے آئین کی انٹرپریٹیشن ہو اس کو آپ ریٹروسپیکٹولی یا کسی بھی طرح سے نلیفائی نہیں کر سکتے. تو لہذا جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ بائنڈنگ ہے الیکشن کمیشن پہ. الیکشن کمیشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرے اور الیکشن کمیشن جو ہے ہیلے اور بانے ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ نہ کرے اور یہ سیٹیں جو ہے کسی نہ کسی طرح سے مینج کر لے. تو یہ میرے خیال میں سپریم کورٹ کے آرڈر کی جو ہے وہ اوبیڈینس نہیں ہے. تو یا تو پھر سپریم کورٹ کو ان کو کنٹیمپٹ ایشو کر دینی چاہیے چیف الیکشن کمیشن کو کہ وہ اس کا آرڈر جو ہے جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں، کبھی ایک سے اوپینین کبھی دوسرے سے اوپینین. تو اس طرح معاملات نہیں چلتے. اگر آپ نے اس ملک کے اندر رول آف لا اور آئین کو چلانا ہے تو پھر آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق جو ہے اس ملک کو چلانا پڑے گا. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بھی کہیے گا جہانگیر جدون صاحب، ہم نے آج بھی دیکھا کہ آج کا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہوا اور اس کے اوپر بھی یہ کہا جا رہا تھا اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ آج اس متعلق فیصلہ سامنے آ جائے گا اور سیٹیں ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی، لیکن آج بھی بے نتیجہ اجلاس ختم ہوا. اتنی زیادہ تاخیر اور اتنا زیادہ اس کو لنگر آن کرنا کس حد تک درست ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ اس کے اندر جایا جا سکتا ہے اس معاملے پر؟ ایگزیکٹلی کیس ہی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ہے. ابھی دیکھیں اس کو کتنا لنگر آن کر سکتے ہیں. ایک چاہے آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے، آپ نے ریویو کیا ہوا ہے، ریویو میں اگر آپ کا فیصلہ ریورس ہوتا ہے سیٹیں ریورس ہو جائیں گی. لیکن ابھی آپ کو یو ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ، اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن اگر امپلیمنٹ نہیں کر رہا تو پھر وہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس ضمن میں یہ بات بار بار کی جاتی ہے جہانگیر جدون صاحب، یہ ہم نے اعتراض دیکھا کہ یہ اعتراض پہلے بھی سامنے آیا کہ ایک جماعت جس نے الیکشن لڑا ہی نہیں اس کو کس طرح سے سیٹیں دے دی جائیں. یہ اعتراض تھا. اس قانونی نقطے پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا جا رہا تھا. میاں شاہد ہمارے ساتھ موجود ہے. میاں شاہد آپ کنٹینیو کیجیے. دیکھیں، جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے جو وضاحت جاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو اکثریتی ججز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں ترمیم کا ماضی سے اطلاق سپریم کورٹ پر نہیں ہو سکتا. جو ایکٹ بنایا گیا تھا وہ اس میں لکھا گیا تھا کہ اس میں ماضی پر جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوگا. لیکن 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے، جب یہ اس کا تحریری فیصلہ بھی آ چکا تھا تو اس کے بعد اور تفصیلی فیصلہ آ گیا تھا تو اس کے بعد آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ حتمی ہو چکا ہے اور حتمی فیصلہ جو ہوتا ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہی لازم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. اور کیونکہ اس پر نظر ثانی جو ہے وہ کی اپیل جو ہے وہ دائر ہو سکتی ہے، جو کہ حکومت جو ہے وہ پہلے کر چکی تھی. لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی نظر ثانی اپیل دائر نہیں کی تھی. انہوں نے وضاحت مانگی تھی، وضاحت پہلے جاری کر دی گئی تھی. دوبارہ جب وضاحت مانگی گئی تو دوبارہ آج وضاحت جاری کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن کو اس پر عمل درآمد کرنا لازمی تو ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو یہ تجویز دی جا رہی ہے قانونی ٹیم کی جانب سے کہ ہم قانون پر عمل کرتے ہیں، فیصلوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، قانون پر عمل کرنا ضروری ہے. اور جہاں تک ابھی جہانگیر جدون صاحب فرما رہے تھے کہ الیکشن توہین عدالت کے نوٹس جو ہے وہ جاری ہونے چاہیے، تو میری آئینی ماہرین سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ ایک آئینی عہدہ ہے، ان کو توہین عدالت کے ڈائریکٹ نوٹس تو جاری نہیں ہو سکتے. ان کے لیے بھی آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے اور وہ ہے جوڈیشل کمیشن میں ایک ریفرنس. اور جو ریفرنس جو ہے وہ کوئی دائر ہوگا تو وہ صدر مملکت جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کو بھیجیں گے اور پھر اس پر کارروائی ہوگی. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ 25 تاریخ کو جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں، تو نئے چیف جسٹس جب آئیں گے تو پھر وہ بینچ جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کے تحت
सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस भी नहीं ले सकती और उसमें जो है बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी जाती है और उसमें जो है वो बेंच तश्कील दिया जाता है। तो ये मामला अभी फौरी तौर पर तौहीन अदालत जो है वो उसका नोटिस तो जारी नहीं हो सकता, आईनी माहिरीन कहते हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद करना जो है वो बहुत लाजमी है। वो इसलिए कि ये हुक्म हातमी हो चुका है और आज जो वजाहत आई है उसमें मजीद वाज़ेह हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हतमी है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे गैर मुअस्सर नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक्ट है, ये आइन है और आइन के जो फैसला आया था उसमें आइन के आर्टिकल्स जो है उनका हवाला दिया गया था। जहां तक बात ये की जाती है कि तहरीक इंसाफ ने नशिस्तें नहीं मांगी थी, उनको दी गई, तो आर्टिकल 187 को अगर पढ़ा जाए तो आर्टिकल 187 जो है वो बड़ा वसी तर आर्टिकल है और उसके तहत ही जो सुप्रीम कोर्ट है समाअत के दौरान मामला जो है वो जेर बहस आ सकता है कि वो उसका जिसकी अगर दरखास्त नहीं भी आई तो उससे जुड़े हुए मामला जो हैं वो उसको उसमें जेर बहस लाया जा सकता है। ये आईनी नुकात हैं जो कि अदालत में ही हल होने हैं, लेकिन इससे पहले अदालती फैसला जो है वो उस पर अमल दरामद करना लाजमी है। ठीक है मियां शाहिद, ये कहिएगा कि मजीद इस मामले को लटकाना और मजीद इस मामले के ऊपर इंतजार करवाना, क्या इससे इलेक्शन कमीशन के लिए मजीद मुश्किलात पैदा नहीं होंगी और मजीद इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बातें सामने नहीं आएंगी? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान बहुत से लगे हुए हैं और बहुत से सवालात उठ रहे हैं और बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन, आपने देखा कि 12 जुलाई का जो फैसला था उसमें लिखा गया था, उसका पैरा नंबर 113 जो है वो पढ़ा जाए तो उसमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अंदर ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान लग जाता है इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर, और उसके बाद इस ऐसे फैसलों पर अमल दरामद ना करना और उसको डिले करना मजीद जो है इसको मशकूक करता है मामले को। और इस हवाले से अपोजिशन जो है वो बार बार इस पर एहतजाज तो करती है, लेकिन आईनी माहिरीन भी जो है वो इस पर अपनी राय रखते हैं और तमाम आईनी माहिरीन की मुत्तफ़िका राय है कि इलेक्शन कमीशन को अमल हर सूरत करना चाहिए। फैसला किसी के हक में आए या किसी के खिलाफ आए, किसी को पसंद आए ना पसंद आए, उस पर अमल दरामद लाजमी होता है। अगर फैसला जो है वो किसी के मुताबिक नहीं है तो उस पर नजर दरखास्त कर दी जाए ताकि उसको दोबारा सुना जा सके। आपने देखा माजी में ऐसे फैसले हुए भी हैं और उस पर फैसले भी आए हैं। चंद दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में ये आर्टिकल 63A वाला फैसला आया था तो वो भी नजरसानी अपील थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो नजरसानी अपील जो है वो मंजूर की थी। और ऐसा होता है कि अगर फैसलों में सुकम हो तो उसको नजरसानी में जाके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हल कराया जा सकता है, क्योंकि फैसले के ऊपर फैसला नहीं आ सकता। फैसले को खत्म करने के लिए या उसको जो है वो तो उसकी समझ दुरुस्त करने के लिए फिर दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही रजू किया जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद करना जो है वो लाजमी है। और आज आपने देखा कि जो तहरीरी फैसला हतमी आया था उसके बाद आज तक अमल दरामद नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन मजीद वजाहतें जो है वो मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करता रहा और उसकी भी वजाहत जो है वो आज आ चुकी है। 8 अक्सरियत जजों ने वजाहत जारी कर दी है। अब कोई बाकी नहीं बचता इलेक्शन कमीशन के पास कि आज जो इजलास हुआ उसमें पंजाब के मेंबर जो है वो शामिल नहीं हुए थे, वो इसलिए इजलास जो है बेनतीजा खत्म हो गया। लेकिन जो कानून टीम थी उसने तो यही कहा था कि कानून पर अमल करें, अदालती फैसलों पर अमल करना जो है वो जरूरी नहीं है। ताहम आज यही हुकूमत को उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई उनके हक में फैसला आएगा, जो कि अभी नहीं आया। लेकिन आईनी माहिरीन कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद कर देना चाहिए, यही आइन की मंशा है और यही बेहतर है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मियां शाहिद, ये भी कहिएगा, कुछ ही देर पहले ये बात हो रही थी रिव्यू के ऊपर, तो रिव्यू में हुकूमत रिव्यू में गई लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिव्यू में नहीं जाया गया। इस हवाले से ये बताएगा कि आपकी इलेक्शन कमीशन के किसी नुमाइंदे से बात हुई हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आपकी बात हुई हो कि वो क्यों इसका फैसला नहीं करते और फिर उसके बाद रिव्यू में नहीं जाते? इस पॉइंट को यूं लटकाने का मकसद क्या है? देखें, जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसमें इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट फरीक नहीं था और इलेक्शन कमीशन जो है वो नजर सानी दरखास्त को उस तरह दायर नहीं कर सकता था और इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करने वाला इदारा है और जो आइन और कानून है उस पर अमल दरामद करने का इदारा है।
वो नजर ثانی में नहीं जा सकता। जिस नजर ثانی में जिन्होंने जाना था वो चले गए। इलेक्शन कमीशन को इस पर अमल दरामद करना था इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो वजाहत में चला गया कि उन्होंने गाइडेंस लेने की कोशिश की और उस पर भी गाइडेंस आ गई। हालांकि वो गाइडेंस जो है वो आइन और कानून के मुताबिक आइनी माहिरीन कहते हैं कि नहीं बनती। जब इलेक्शन कमीशन के किसी नुमाइंदे या हुक्काम से बात होती है तो कोई भी उस हवाले से जो है वो मुतमिन जवाब नहीं दे सकता और नहीं दिया जाता उनकी जानिब से, क्योंकि उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि इजलास होगा तो उसमें जो है वो बात होगी और मेंबरान जो है वो उनके सामने मामला रखा जाएगा तो उसकी वजाहत होगी। आज वजाहत जो है वो कर दी गई है दोबारा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आईनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन जो हैं वो इस पर मुत्फिक हैं कि इसको अमल दरामद करना है और इलेक्शन कमीशन जो है वो कि हुकूमत नहीं है, वो एक इदारा है और इदारों को आइन और कानून पर अमल दरामद करना होता है और अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना होता है। और इलेक्शन कमीशन बराह रास्त फरीक भी नहीं है, हुकूमत जो है वो उसमें फरीक है, इत्तेहादी जमातें उसमें फरीक हैं, जिनको मखसूस चीजें मिलनी थी वो इसमें फरीक है और उन्होंने नजर ثانی दरखास्त कर रखी है। उसके लिए बेंच इसलिए नहीं बना था कि जजेस अवेलेबल नहीं थे और जजेस जब अवेलेबल होंगे तो वो बेंच बनना था। 13 रुकनी बेंच था और 13 रुकनी बेंच के लिए जजेस अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए उस पर जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये भी कहिएगा मियां शाहिद कि हुकूमत को इस सारे मामले में आप समझते हैं मौजूदा हुकूमत को सियासी तौर पर जितना भी इसको लिंगर ऑन किया जाएगा सियासी तौर पर इसका नुकसान ही होगा, इसको लिंगर ऑन करने का इनको फ़ायदा नहीं होगा? किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, जो अदालती फैसले होते हैं उस पर तो अमल दरामद होना लाजमी होता है और जितना जल्दी उस पर अमल दरामद कर दिया जाए वही जो है फ़ायदामंद होता है। उसको लिंगर ऑन करने से जो है मामलात बिगड़ते हैं। आपने देखा कि आईनी तरमीम के लिए 15 सितंबर को एक कोशिश की गई थी लेकिन नहीं हुई, अभी तक कोशिश नहीं हुई। आज भी जो है वो इजलास बुलाए गए लेकिन उनको मुलतवी कर दिया गया। अभी 6 बजे दोनों ईमानों के इजलास हैं, काबीना का इजलास नहीं हो सका। मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, उनको मनाने की कोशिश अभी भी जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी पैगाम भेजा है। ये तमाम मामलात इसीलिए खराब हो रहे हैं कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद जो है वो नहीं हुआ। अगर उन पर अमल दरामद हो जाता तो फिर हुकूमत अपने नंबर जो है वो पूरे कर लेती या मौलाना फजलुर रहमान को मनाती। ये उन पर उंगली ना उठती कि उन्होंने अदालती फैसले पर अमल दरामद करने के बजाय जो हाथ ट्रेडिंग की जानिब जो है बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि कितने इल्जामात लग रहे हैं, इस तरह के इल्जामात भी ना लगते, लेकिन हुकूमत जो है वो अभी तक उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। हुकूमत के पास तो जवाब यही है कि वो नजर ثانی अपील में जा चुके हैं। नजर ثانی अपील से जब फैसला होगा तो उस पर अमल दरामद हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कि एक इदारा है, इलेक्शन कमीशन कोई हुकूमत नहीं है, उसको अमल दरामद जो है वो करना है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि फौरी तौर पर अमल दरामद करे। जब पहली वजाहत आई थी तो उसमें भी ये कहा गया था कि फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। जब ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा मियां शाहिद।